हरियाणा के फरीदाबाद के सूरजकुंड के 39वें सूरजकुंड कौमांतरी स्वै निर्भर शिल्प मेला 2026 का शानदार आगाज होया जो 15 फरवरी तक चलेगा। भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने मेले का उद्घाटन किया। मेले ग्राउंड की मुख्य चौपाल के मंच तो उपराष्ट्रपति ने दीप जला के प्रोग्राम का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने मेले में आने वालों की सहूलत लिए मेला साथी ऐप का भी शुभारंभ किया। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी और विरासत ते सैर सपाटा मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा वालों उन्होंने एक पेंटिंग भी भेंट की गई। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी, केंद्रीय सहकारिता राज मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, मेले में सहयोगी देश मिस्र के प्रतिनिधि, हरियाणा के मंत्री विपुल गोयल, राजेश नागर, खेड राज मंत्री गौरव गौतम मौजूद रहे। इस मौके पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने मेला कंपलैक्स में हरियाणा के अपना घर पवेलियन का दौरा किया, जिथे हरियाणवी पगड़ी पहना के उन्होंने पारंपरिक स्वागत और सत्कार किया गया। उपराष्ट्रपति ने मेले के थीम स्टेट मेघालय के स्टालों का भी निरीक्षण किया। इस मौके पर संबोधन भी किया। अपने संबोधन दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 39वें सूरजकुंड कौमांतरी स्वै निर्भर शिल्प मेला भारत की मजबूत और सांस्कृतिक विरासत नूं स्वै निर्भरता की भावना के नाल जोड़ रहा है। यह मेला वोकल फॉर लोकल अभियान नूं सशक्त आधार प्रदान करते हुए स्थानक शिल्प कला और कारीगरां नूं ग्लोबल मंच देख के पहचान दिवाउण दा प्रभावी माध्यम बन गए। With more than 32 countries participating this year, this fair is true embodiment of timeless Indian philosophy of Vasudhaiva Kudumbakam. The whole world is one family, bringing together the nations, cultures and the crafts under one shared roof. That is our Mela today. It brings together the hands that create. It brings together that minds that innovative. And it brings together the traditions that define many countries. For nearly 4 decades, this Mela has been providing a global platform to our artisans, weavers, sculptors, painters and folk performers, many of whom carry forward skills passed down through generations. It is the training given by our elders that is continuing even today. We have seen the cultural festival representing the whole country. Ek Bharat, Shrestha Bharat, that is what we have seen today, a wonderful performance by the youngsters. The focus this year is on Atmanirbhar Bharat adds deeper meaning to this event. Our artisans are the custodians of centuries-old knowledge, and empowering them is essential to build the strong, inclusive and sustainable economy. Under the visionary leadership of our Honorable Prime Minister Shriman Narendra Modi ji, India's ritual cultural heritage and the traditional handicrafts sector have over the last decade been placed at the heart of our national renaissance. This transformative initiative like the Pradhan Mantri Vishwakarma Kaushal Samman Yojana are providing end-to-end support, skill development and economic empowerment to our artisans and craftspeople, strengthening the very ecosystem that sustains our old age crafts and artisanal traditions. I am also happy to note that the theme states for this year's fair are Uttar Pradesh and Meghalaya, 2 states that represent the remarkable diversity and our great unity of India. Uttar Pradesh, the heartland of Bharat, is a cradle of ancient civilization and artistic mastery. From the unique Jardoji of Lucknow, the world-renowned Banarasi silk, the brassware of Moradabad, and the blue pottery of Agra, to the delicate Chichinkari embroidery, Uttar Pradesh showcases a legacy where craftsmanship meets refined mind. साथियों, आज हम कला और शिल्प के
उस महाकुंभ में साक्षी बनने जा रहे हैं, जिनकी न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में एक विशेष पहचान है। साथियों, मैं 39वें सूरजकुंड मेले, अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले के इस भव्य उद्घाटन समारोह में आप सब महानुभाव का, मातृशक्ति का, युवा साथियों का, सभी महानुभाव का अभिनंदन भी करता हूं, आप सबका स्वागत भी करता हूं। साथियों, मैं इस कार्यक्रम के आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन जी का विशेष रूप से मैं स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। मान्यवर, आपकी उपस्थिति से इस मेले की गरिमा कई गुना बढ़ी है। आपकी उपस्थिति से हम सभी और विशेषकर यहां आए देश विदेश से हमारे शिल्पकारों को नई प्रेरणा आज आपके आने से हमें मिली है। मैं सभी हमारे जो विदेशी मेहमानों का, हरियाणा की इस पावन धरती, भगवान श्री कृष्ण की ये भूमि, जिस भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश दिया, इस पावन भूमि पर आप सबका स्वागत, अभिनंदन करता हूं। साथियों, ये सूरजकुंड मेला हमारी प्राचीनतम और आधुनिकतम ये इसका संगम है। साथियों, आज हम यहां उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं जो पिछले 38 वर्षों में भारतीय लोक कला और संस्कृति को जीवंत रखे हुए है। इस वर्ष मेले के जो थीम भी रखा गया है, वो थीम लोकल टू ग्लोबल और आत्मनिर्भर भारत की पहचान है। यह थीम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के उस सपने का ये प्रतिबिंब है, जिसमें वे भारत के हर कोने में बैठे हुए हुनरमंद हाथ को वैश्विक बाजार से जोड़ना चाहते हैं।